Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our discussion is theories of punishment. Before we start theories of punishment, we have to understand what is criminal justice. The criminal justice is that kind of justice which is exercised, which is utilized during the criminal proceedings. And the objective of criminal justice is to make the wrongdoers punish. What is the purpose of criminal justice? According to Dr. V.D. Mahajan, in his famous book, Jurisprudence and Legal Theory, Dr. V.D. Mahajan states, the purpose of criminal justice is to punish the wrong. यानी क्रिमिनल जस्टिस का मकसद है मुल्जिम को सजा दिलवाना. And he is punished by the state. और ये स्टेट की जिम्मेदारी है उसको सजा देना, उसको सजा दिलवाना. It is the obligation of the state. It is the function of the state machinery. According to Dr. Mahajan, criminal justice is a process through which the offender is made suffer or forced to rectify the damages which he had made to the injured party. And this is done by the state through its prevailing laws, through the right of the government, and this right of the government will apply the prevalent laws. तो डॉक्टर महाजन साहब कहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस का मकसद है ऑफेंडर को सफर करना या करवाना, कि वो जो इंजर्ड पार्टी की उसने डैमेजेस किए हैं उसकी किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी तनाजुर में, किसी न किसी कारण में जो है उसकी सेटिस्फेक्शन की जाए, उसको रिस्टोर किया जाए, वो नुकसान जो है पूरा किया जाए. If we analyze and if we observe minutely the various theories of punishment, prima facie, at first hand, at first stage, पहले मरले में, we try to understand, we are studying and clarifying the theories of punishment. तो सबसे पहले जो है उसके अंदर theories of punishment को हम दो बड़े सर्कल्स में डिवाइड करते हैं. वो कौन से दो बड़े बड़े सर्कल हैं? I am dividing the theories of punishment in two main circles, in two main big spheres, in two main big categories. Number one,
protection and welfare of the society. And number 2, retribution. This clarification is two-edged. There are two folds of this discussion. I am dividing all the theories of punishment into two categories. One is protection and welfare of the state, protection and welfare of society. And second is the retribution, concept of retribution. अभी तक हमने ये दो मेन कैटेगरीज बनाई हैं theories of punishment. तो पहले हम देखते हैं protection and welfare of society को. एक तबका कहता है कि क्रिमिनल जस्टिस का जो मकसद है वो मुआशरे और रियासत की प्रोटेक्शन, मुआशरे और रियासत की भलाई है, सेफ गार्ड है, प्रोटेक्शन है, डिफेंस है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड कम्युनिटी ऑफ द स्टेट है. दिस इज द वन एस्पेक्ट ऑफ द theories of punishment, to sustain the protection of the society, to preserve the welfare of the society, to perpetuate the peace and tranquility of the society and community. Second concept is retribution. The wrongdoer should not be vacated. He should not be escaped from the clutches of the law. He should face the music. He should suffer. He should undergo the agony for the wrong which he has done, for the loss which he has incurred on somebody. He has imposed on somebody illegally and immorally. तो अभी तक यहाँ तक हमने theories of punishment को जो है वो दो कैटेगरीज में देख सकते हैं. एक तो theories of punishment का मकसद है welfare and protection of the society, और दूसरा the concept of retribution, कि जिसने wrong commit किया है उसको उसके बदले उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसको उस wrong का खमियाजा भुगतना चाहिए. अब हम आते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो क्रिमिनल जस्टिस के अंदर मौजूद है. नंबर 1, पुलिस. पुलिस आर द पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस. जब हम स्टेट के ऑर्गन्स को हम डिफाइन करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, तो उसमें भी हम कहते हैं कि जी किसी भी स्टेट के 3 पिलर्स हैं. लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है. और लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, टू मेक लॉज, द फॉर्मेशन ऑफ लॉज. द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज. लेजिस्लेशन, इनेक्टमेंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेशन. और मुकन्ना का काम है, पार्लियामेंट का काम है, दस्तूर साज असेंबली का काम है कानून बनाना, टू मेक लॉज, टू इनेक्ट लॉज, टू फॉर्मेट लॉज, टू फॉर्मुलेट लॉज. तो उसके अंदर जो है आई एम टॉकिंग ऑफ स्टेट्स. देयर आर 3 पिलर्स ऑफ स्टेट. लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, जुडिशरी का काम है कानून की तशरीह करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, कानून की तशरीह बताना, कानून की तफसीर बताना, कानून का महल वकूअ बताना, कानून का निफाज बताना, कानून की एप्लीकेबिलिटी और एनफोर्सेबिलिटी बनाना. These all factors are included in the job of the judiciary. लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, जुडिशरी का काम है कानून की तशरीह और ताबीर करना. What is the law and what is the nature of law? To what extent it is applicable? To what extent it is not applicable? Whether it is valid, whether it is void, whether it is Islamic, whether it is secular, whether it is in accordance with injunction of Islam, whether it is in accordance with the Constitution of Pakistan. So all these factors, all these aspects are annexed with the interpretation of law, and this is the job of the judiciary. The judicial system of a country is called judiciary. किसी मुल्क के अदालती निज़ाम को अदलिया कहते हैं, और अदलिया का काम है कानून की तशरीह करना, कानून की तफसीर बताना, कानून की ताबीर करना, कानून की वजाहत करना, to clarify laws, to elucidate laws, to elaborate laws.
तो पुलिस जो है पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। वी आर टॉकिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। जुडिशरी का काम है उस कानून की तशरीह करना, उस कानून की नौयत बताना, उस कानून की सेहत बताना, उस कानून की रूह बताना। और एग्जेक्टिव का मतलब है इंतजामिया, हुकूमत की जो मशीनरी है। इंतजामिया जो है, इंतजामिया का काम है, एग्जेक्टिव का काम है उस कानून पे अमल दरामद करना, टू पुट दोज लॉज इनटू प्रैक्टिस, द प्रोसेस ऑफ प्रोमलगेशन, टू पुट दोज लॉज इनटू प्रैक्टिस, उन लॉज को इन लेटर एंड सेपरेट जो है उन पे अमल दरामद करवाना। तो पुलिस इज द पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव। दीज आर थ्री पिलर्स ऑफ स्टेट। तो हम वापस आते हैं अपने क्रिमिनल जस्टिस की बेस पे। तो क्रिमिनल जस्टिस के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं? तो क्रिमिनल जस्टिस के अंदर कंपोनेंट जो है वो पुलिस इटसेल्फ है। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो क्रिमिनल जस्टिस का हिस्सा है। उनकी जिम्मेदारी है कानून पे अमल दरामद करवाना, to put the laws into practice in letter and spirit। पुलिस जो है ये कंपोनेंट है क्रिमिनल जस्टिस। उसके बाद कोर्ट्स जो है, हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स, ये सारे लोग जो हैं ये कोर्ट्स का हिस्सा है। तो कोर्ट्स जो हैं ये दूसरा कंपोनेंट है इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। थर्ड है प्रिजन्स, जहां हम कैदियों को रखते हैं, जहां हम प्रिजनर्स को रखते हैं। कोई अंडर ट्रायल्स हैं, कोई अपील के मरहले पे हैं, कोई कन्विक्टेड हैं। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्रिजनर्स। तो अभी तक जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में बात की है, तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। नंबर वन प्लेस, नंबर टू कोर्ट्स, और नंबर थ्री प्रिजन्स। हमारा जो प्रिजन्स का सिस्टम है, हमारा जो जेलों का निज़ाम है, ये भी क्रिमिनल जस्टिस का हिस्सा है। नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन पनिशमेंट। सजा का क्या मतलब? ताज़ीर फारसी ज़बान का लफ्ज़, इसकी जमा है ताज़ीरात। ताज़ीर कहते हैं सजा को, अंग्रेजी में हम कहते हैं पनिशमेंट, पेनल्टी, पेनलाइजेशन। सेंटेंस की सजा के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव टू डिफाइन पनिशमेंट। पनिशमेंट इज ए सैंक्शन। सैंक्शन भी जो है हमारे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, हमारे लॉ के अंदर सैंक्शन का जो लफ्ज़ है वो भी सजा और पाबंदी के मीनिंग में। When we talk of the international law, तो वहाँ सैंक्शन जो है वो पाबंदी के मीनिंग में है, रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रेंट के मीनिंग में है। और व्हेन वी टॉक ऑफ द क्रिमिनल लॉ, तो वहाँ सैंक्शन जो है वो पेनल्टी और पेनलाइजेशन के मीनिंग्स में। पनिशमेंट इज अ सैंक्शन such as fine. Fine is a kind of penalty. Confinement is a kind of punishment. Loss of property is a kind of punishment. So punishment is a sanction such as fine, penalty, confinement, or loss of property, right or privilege assessed against a person, determined against a person who has violated the law. So we will impose the punishment, we will thrust the punishment upon the offender, upon the wrongdoer who has violated the law, who has challenged the writ of the government, who has violated the sanctity of the public law, who has disturbed the public order and tranquility, who is the offender. And punishment will be imposed on offender, criminal, culprit. theories of punishment के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है theories of punishment के अंदर
रेफर्मेटिव थ्योरी। रेफर्मेटिव से क्या मुराद है? टू रिफॉर्म, रेफर्मेशन, रेफर्मेटिव, ये वर्ड्स जो हैं ये इस्लाह से रिलेटेड, किसी चीज को बेहतर बनाना। रेफर्मेशन इस्लाह के मीनिंग में किसी को ठीक करना, किसी को दुरुस्त करना, किसी में बेहतरी लाना। रेफर्मेटिव थ्योरी का जो ऑब्जेक्टिव है, टू पनिश द ऑफेंडर as little as possible and to improve the criminal as much as possible. This is the purpose of reformative theory. To punish the criminal as little as possible and to improve that criminal as much as possible. अब reformative theory को ये जो supporters हैं, they say that वो कहते हैं कि एक क्रिमिनल शुड बी ट्रीटेड लाइक ए डिसीज्ड मैन, लाइक ए पेशेंट। जिस तरह हॉस्पिटल्स में हम एक पेशेंट्स को डील करते हैं, तो रेफर्मेटिव थ्योरी वाले कहते हैं कि इसी तरह जो क्रिमिनल है वो भी एक पेशेंट है, एक डिसीज्ड पर्सन है। तो उसने एज ए क्राइम जो एक बीमारी कमिट की है, तो अब वो एक बीमार बन गया इन द फॉर्म ऑफ क्रिमिनल, तो उसको जो है उसकी बीमारी दूर की जाए और फिर से उसको जो है वो माशरे का मुफीद शहरी बनाए। The supporter of this theory say कि क्रिमिनल्स को जो है वो एक्सट्रीम और बारबैरिक जो पनिशमेंट जो है वो ना दी जाए। एक सिंपैथी और ह्यूमैनिटी का एलिमेंट है रेफर्मेटिव थ्योरी के अंदर, और उसमें एक मकसद भी है कि ह्यूमैनिटी को सेव भी किया जाए और उनको उनकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव भी। तो रेफर्मेटिव थ्योरी का मकसद जो है वो मुल्जिम को शदीद और बारबैरिक जो पनिशमेंट्स हैं उनसे बचाना है और उनको फिर से जो है वो मुआशरे का जो है मुफीद शहरी बनाना है। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? रेफर्मेटिव थ्योरी वाले कहते हैं कि जी मुल्जिम को मुजरिम को आप थोड़ी सजा दें और उसका रेफर्मेशन का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस थ्योरी के अंदर। जो पनिश और पेनल्टी का एलिमेंट है वो दबा हुआ है, वो डिम है, और जो इस्लाह का पहलू है, रेफर्मेशन और बेटरमेंट का पहलू है, वो थोड़ा सा क्लियर है, एविडेंट है इस थ्योरी के। अब इसकी जस्टिफिकेशन की है कि उन कल्प्रिट्स को, उन रॉन्ग डूअर्स को क्यों सजा कम दी जाए और क्यों उनको लग्जरियस मॉल दिया जाए कि वो जनाब वहाँ ऐश करें जुर्म और जराइम कमिट करके। अब उसकी जस्टिफिकेशन इस थ्योरी वाले ये देते हैं कि जिस तरह गुनाह किसी से सरजद हो सकता है किसी भी जिंदगी के मरहले पे, तो इसी तरह क्राइम भी किसी बंदे से, किसी भी शहरी से हो सकता है। तो उसकी वो जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि जनाब दिस पर्टिकुलर क्राइम हैज बीन कमिटेड अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, वो मखसूस हालात के तहत है जिसके तहत उस बंदे ने ये जराइम या जुर्म जो है वो कमिट किया। अगर वो हालात ना होते तो शायद वो ये जुर्म कमिट ना करता, काबिल नफरत मुआशरे के लिए ना बनता। तो वो ये अपना दलील देते हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक बंदे ने जो है वो एक जुर्म जो है वो मखसूस हालात के तहत जो उससे सरजद हुआ है, उसने इर्तिकाब किया है, तो शायद वो दोबारा इसको अगेन कमिट ना करे। शायद उसका इस जुर्म को दोबारा कमिट करने का इंटेंशन नहीं है, किसी मखसूस हालात से मजबूर होकर उसने ये जो है वो जुर्म किया है, और इन द फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस ही विल रिफाइन हिमसेल्फ। एक तो ये जस्टिफिकेशन है। और दूसरा जो स्पिरिट ऑफ लॉ का पॉइंट, ये कानून का एक मैक्सिम है, कानून का एक असूल है कि इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ लॉ बट इट इज द स्पिरिट ऑफ लॉ व्हिच गिव्स जस्टिस।
अगर हम इस असूल को देखें, इस मैक्सिम को देखें, कानून के इस हम कौल जर्री को देखें, तो उसमें दूसरी वो जस्टिफिकेशन ये लेते हैं कि while the judicial officer of the court, while the judge is going to award the punishment or sentence, अब उस जज की क्या जिम्मेदारी है? उस जज की जिम्मेदारी इस थ्योरी वाले ये कहते हैं कि he should take into consideration all the circumstances of the case. If this particular offense has been committed under some special circumstances and it might be possible, surely it might be possible that he will not commit it again. That particular wrong was committed against particular circumstances. उसमें दूसरी वजह ये है कि